ہم جس دور فتن سے گزر رہے ہیں اس کا احساس ہر زندہ دل انسان مسلمان کرتا ہے. ہمارے اٹھنے سے لے کر کے سجدہ کرنے تک لوگ تیسری آنکھ سے نظر رکھے ہوئے ہیں. کس طرح سے اٹھا جاتا ہے، کس طرح سے چلا جاتا ہے، کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ مسلمان کرتے کیا ہیں. دیکھو، کوئی لوز پوائنٹ ملے تو وہیں پھندا ڈالو. میں آپ کے دل سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. چمیاولی کے غجور مسلمانوں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دو. آپ کے پڑوس میں اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اور دنیاوی ایسا جو فلاحی کام ہو، ایمانداری سے بتاؤ، کیا دلی میں بیٹھنے والے کو خبر ہو جاتی ہے؟ کہ چوکی اور تھانوں میں بیٹھنے والوں کو خبر ہو جاتی ہے؟ کیا دور دراز بیٹھنے والوں کو خبر ہو جاتی ہے؟ یہ خبر دیتا کون ہے؟ میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں. انہیں جو بیٹھے ہیں دور 200 کلومیٹر دور، انہیں خواب نہیں آ رہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے اندر کا جو خناس ہے، جسے دوسری زبان میں، معاشرے کی زبان میں جو مخبر کہتے ہیں، دلال کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے اس مسلم سماج کو اندر سے ایسا کھوکھلا کر دیا، ایسا کھوکھلا کر دیا کہ اس کا وجود بالکل ختم ہوتا نظر آتا ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اجازت لینی ہے، آپ کو کوئی دینی کام کرنا ہے تو اجازت لینی ہے، آپ کو جلسہ کرانا ہے تو اجازت لینی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ، وہ قوم جو رسول اللہ نے چھوڑی تھی کہاں ہے؟ وہ قوم جو صحابہ کا بہترین معاشرہ رسول اللہ نے اپنے دست تربیت سے تشکیل دیا تھا، کہاں گیا؟ کہاں گئی ان کی وصایا؟ کہاں گئی ان کی تربیت؟ رسول اللہ کی باتیں اور ان کے اقوال اور ان کی حدیثیں. ایمانداری سے بتاؤ چمیاولی کے غجور مسلمانوں، اگر مولانا تم سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ رسول اللہ کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، بات آپ کو سننی پڑے گی. کیا وجہ ہے کہ آج گھروں میں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہے؟ بے شک بے شک. کیا وجہ ہے کہ آج گھروں میں محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج گھر میں خالد بن ولید بن کر کے کوئی نہیں آ رہا؟ میرے پیارو، جس خاندان میں مخبر پیدا ہوں، جس خاندان میں رسول اللہ کے باغی پیدا ہوں، یاد رکھو اس خاندان میں کیا، اس سماج میں کبھی صلاح الدین ایوبی جنم نہیں لے پائے گا. ایک طرف رسول اللہ کی شریعت سے بغاوت، اور دوسری طرف ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے ہیں. رسول آئیں گے اور ہمیں بخشوا لیں گے. میرے پیارے، رسول بالکل بخشوائیں گے، رسول کی شفاعت پر ہمیں یقین ہے. لیکن یہ بتا کہ تو نے اپنے مصطفیٰ کو کتنا راضی کیا؟ بے شک بے شک. قرآن تو کہتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. او لوگو، جو میرے نبی کی شریعت سے منہ موڑے گا، یاد رکھنا ہم اس کی زندگی دوبھر کر دیں گے. اور صرف زندگی دوبھر نہیں ہوگی، یہ میاں محمد کا کلام نہیں، یہ حضرت محمد پر اترنے والا کلام ہے. بے شک. یہ دنیا ہی اس کی برباد نہیں ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید ریحان میاں صاحب قبلہ. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج دیکھو، یہ قاری یوسف صاحب قبلہ پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں، قاری علاء الدین صاحب قبلہ آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں.
हथेली पर जान रख करके सफर करते हैं। ये माहौल किसने क्रिएट किया? दिल्ली और मुंबई में बैठने वालों ने नहीं है, मुसलमान तूने क्रिएट किया। तू अपने नबी का बागी बन गया, अल्लाह का अजाब आ गया दूसरी सूरत में। हम एक दूसरे के तई कभी तो मुखलिस हो जाएं, हम एक दूसरे के लिए कभी तो मुखलिस हो जाएं। हम किसी को बढ़ता हुआ देखते हैं, फौरन पहुंच जाते हैं चौकी थानों। मेरे प्यारों, वो पैसा जो तुम्हें अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करना चाहिए था, अफसोस मुसलमानों का 90% पैसा चौकी थानों में जा रहा है। क्या अच्छा होता कि तुम चौकी और थानों में अपना पैसा मुकदमों में बर्बाद ना करते, तुम उस पैसे को बचा के अपने बच्चों को तालीम दे देते। यहां से लेके वहां तक खड़ा हाथ खड़ा करके बताओ, इतना बड़ा मजमा है, ईमानदारी से बताओ तुम में कौन रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम है? बताओ, खड़ा हाथ करके बताओ। रसूलुल्लाह की बातें तुम सुनोगे, आलिम कोई दूसरी कौम बनाएगी। मेरी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप मुझे आगे मदऊ करें कि नहीं करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं यहां पर मिंबरे रसूल पर बैठा हूं, मैं जन्नतें बांटने वाला पीर नहीं हूं। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि फलां का चेहरा देखिए तो जन्नत मिल जाएगी, फलां के मुरीद हो जाइए तो जन्नत मिल जाएगी। मेरे प्यारे, जन्नत इतनी आसान नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उस्ताजुल उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा लोगों ने दुनिया को तर्क किया और फिर भी ना मिल सकी। जन्नत इतनी आसान हो कि पीर का चेहरा देख ले, आलिम का चेहरा देख ले और जन्नत मिल जाए तो बेवकूफे फजर के लिए उठेगा। पागल है कोई इंसान जो चेहरा देख के जन्नती बन रहा। अरे वो जमाना और था। अन्नज़रु इला वजह अली इबादा, मेरे मुस्तफा फरमाते थे कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो जमाना और था, ये जमाना और है। ये जन्नत के ठेकेदार मैं बताता हूं तनज़्ज़ुली दोनों जानिब से है। आपने भी इस्लाम के साथ वफा नहीं की और यहां पर बैठने वाले ने भी अपना हक अदा नहीं किया। आज ये उलमा को ये बातें करनी पड़ रही है। काश आज से 10 साल पहले ये बातें की होती तो आज मुआशरा ये नहीं होता जो आज नजर आ रहा है। हम जानते हैं हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के यहां बैठे हैं, ये उलमा जानते हैं, इसलिए कि हमें पता है अल्लाह के मामूर फरिश्ते कयामत के दिन आपसे नहीं हमसे सवाल करेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बेशक बेशक, हमसे पूछेंगे कि चिम्याविली के लोगों ने तुम्हें स्टेज दिया था, तुमने उनकी इस्लाह की बातें क्या की? तो हम बताएंगे और तुम भी बताओगे। क्या बताओगे? ये बताओगे कि हम यहां से बोल रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करो। बेशक। अब दौर वो नहीं है जो अपने शादियों में लाखों करोड़ों का खर्च करो। खत्म करो, बंद कर दो इन चीजों को। करोड़ों अरबों के खर्चे बंद करो और अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। आलिम दीन, मैंने अभी कहा था कि बताइए कितने आलिम दीन हैं, एक ने हाथ खड़ा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि दुनियादार हैं, करोड़पति हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर वर्कर्स हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे तनख्वाह वाले लोग हैं, ये मालदार हैं, ये लोग करोड़पति लोग हैं। इतने करोड़पति, बेहद करोड़पति। क्या आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया? क्या आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया? क्या आपने बच्चे को अपने IPS, DM, SDM बनाया है? कोई ऐसा तो खड़ा करे, मैं उसका नाम लेकर के नारा लगाऊंगा। ये अफसोस का मकाम है। जल से 1 लाख नहीं 1000 लाख कर लो, लेकिन अगर आप अपने अंदर सुधार पैदा नहीं करोगे, तालीमी बेदारी पैदा नहीं करोगे, तो यकीनन ऐसे ही होगा कि जलसा सुनने गए, कहां गए? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। यहां से लेके वहां तक ना आलिम दीन, ना कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर। ईमानदारी से बताओ दुनिया में क्या करने के लिए आए? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनियादार थे तो कम से कम दुनिया तो कमाते, अगर दीन नहीं कमा सके तो।
میرے پیارو آپ جب سو بستر پہ جا کے میری باتوں پہ غور کرنا، میری باتوں پہ غور کرنا کہ ہم نے 60 سال کی زندگی گزاری، 30 سال کی، 40 سال کی زندگی گزاری، ہم نے کیا کیا؟ ہم ان سالوں کے کسی ایک مہینے، ایک ہفتے، ایک دن میں بھی اپنے رب کو راضی کر سکے؟ اگر آج ہم مر جائیں، کیا ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو کیا ہم سامنا کر پائیں گے؟ کیا ہم اللہ کے مامور فرشتوں کے سوالات کے جواب دے پائیں گے؟ میرے پیارو غیور مسلمانوں، اگر اس کا جواب تمہارا ہاں ہے تو ٹھیک ہے، استقبال ہے، لیکن اگر اس کا جواب اگر نہ ہے آپ کے پاس تو آج سے ہی اپنے اندر بیداری پیدا بے کیجئے، شک بیداری پیدا کیجئے۔ آج مسلمان کو تمہاری جائیداد کو خطرہ کسی اور سے نہیں، دلی میں بیٹھنے والے سے نہیں، گورکھپور میں بیٹھنے والے سے نہیں، تم سے تمہارے مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کو خطرہ ہے۔ یہ بتاؤ، کیا کسی مسلمان کے زمین پہ قبضہ کرنے والا، ڈولے اور مینڈے کاٹنے والا کوئی دلی سے آتا یا تم کاٹتے ہو؟ ہم میں سے ہی کاٹنے والے، ہم میں سے ہی کاٹنے والے۔ تو میرے پیارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو وہ تھی کہ ایک مرتبہ سرکار نماز فجر میں ہے اور پیچھے ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سرکار کے سلام پھیرنے کے بعد بغیر دعا مانگے پیچھے چلے جاتے ہیں، واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، جب آپ کا یہ معمول لگاتار سرکار نے دیکھا تو ایک دن روک لیا ہے، ابو دجانہ ذرا بات سن، کیا معاملہ ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے سوال کرنے کی کوئی حاجت نہ رہی؟ کیا اللہ نے تجھے غنی کر دیا؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فدا کا امی وہابی، آپ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن معاملہ یہ ہے یا رسول اللہ میں جہاں رہتا ہوں اس کے برابر میں ایک یہودی کا گھر ہے اور اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کی کچھ شاخیں میرے گھر میں لٹکی ہوئی ہیں، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے گھر اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے بھوکے بچے وہ کھجور اٹھا کر کے کھا لے، اور میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں چمیا ولی کے غیور مسلمانوں، دیکھو غیرت اور حمیت یہ ہوتی ہے، خشیت یہ ہوتی ہے۔ ایک یہودی کی ایک کھجور کھانے پر تڑپ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جب اپنے صحابی کی یہ بات سنی نہ تڑپ گئے، اے ابو دجانہ تجھے تو تیرے بچے بھوکے رہتے ہیں، تجھے تو کھانے کی ضرورت ہے، اے ابو دجانہ بیٹھ جا۔ سرکار نے اعلان کیا، ہے کوئی ایسا مرد مجاہد میرا صحابی جو اس یہودی کے درخت کو ابو دجانہ کے بچوں کے لیے خرید کر کے وقف کر دے، سبحان اللہ، بدلے میں جنت میں 10 باغ مجھ سے لے لے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی نہیں، کئی صحابیوں نے ہاتھ اٹھایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق، اللہ اکبر کبیرہ، پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ کھڑا نہیں کرتے، پورے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یا اللہ، رسول اللہ میں حضرت ابو دجانہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے وہ درخت خرید کر کے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید ریحان میاں صاحب قبلہ، اعلیٰ حضرت کانفرنس۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، اٹھے اور اس یہودی کے گھر پہنچے اور کہا کتنے میں اپنا درخت بیچتا ہے؟ توجہ ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک میسج دے کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کتنے میں دیتا ہے؟ خاموش رہا یہودی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یاد رکھ، اللہ کے سچے رسول نے یہ وعدہ کیا ہے، اگر تو یہ درخت ابو دجانہ کے بچوں کے لیے وقف کرے گا تو جنت میں تجھے 10 پیڑ عطا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، فرمائیں گے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں کیا جانوں جنت، اور میں کیا جانوں رسول، مجھے کچھ نہیں پتا، اگر لینا ہے تو دام کی بات کرو، لینا ہے تو دام کی بات کرو۔ کہاں گئے ابو بکر کی صدیقیت پر بھونکنے والے کمبخت؟ آؤ دیکھو صدیقیت کس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پلٹ کر کے سرکار کی بارگاہ میں نہیں گئے، وہیں فیصلہ کیا، چل جنت کے بدلے میں نہیں لیتا، تیرے نصیب میں نہیں ہو سکتی، لیکن سن
अबू बकर खरीदता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और सुन, तू दुनिया में लेना चाहता है तो देख, मेरे फला जगह पर 10 पेड़ हैं, आज से तेरे लिए मैं वक्फ करता हूं, तू अबू दुजाना के बच्चों के लिए अपना पेड़ वक्फ कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों के लिए वो पेड़ खरीद लिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमान ऐसा होता है कि जिसकी जो कदम भी उठाए उससे गैर मुस्लिम सबक सीखते हैं, सबक सीखते हैं। आपने ये कदम उठाया, इधर वो यहूदी रात को सोया, उसकी किस्मत बेदार हुई, आँख खुली, क्या देखता है? जन्नत के बागात है, सुभान अल्लाह। जन्नत के बागात हैं। फड़फड़ा करके आंख खोली और दरबारे रिसालत में पूरे घर के बच्चों के साथ पहुंचा और कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर को बुला लो, ऐलान करता हूं मैं आपकी रिसालत पर ईमान ले आया। आपने जो मेरे लिए सौदा किया था, मैंने अपनी माथे की आंखों से अल्लाह अकबर कबीरा ख्वाब में देख लिया है कि अल्लाह ने मुझे वो पेड़ अता फरमा दिए हैं। अब मुझे दुनिया के किसी पेड़ की जरूरत नहीं, अब मुझे खुदा का रसूल काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये पेड़ दिया और उसके बदले में इस्लाम भी कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर के जो पेड़ थे वो भी नहीं खरीदे, वो भी नहीं लिए बदले में। मैं आपसे इस वाक़े से एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, ए लोगो, तुमसे तो तुम्हारा मुसलमान भाई महफूज नहीं। देखो देखो, अगर पड़ोसी यहूदी भी हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मुसलमान के तर्ज अमल से इस्लाम ले आता। आज तुम्हारे तर्ज अमल देख देख करके लोग भाग रहे हैं तुम्हारे, पता नहीं कितना खतरनाक दीन है। और आज शराब की हट्टियों पे जाकर देखो, जना के अड्डों पे जाके देखो, ढोल गाजे बाने ताशे और नशों के अड्डों पे जाके देखो, लोग बताते हैं कि उतनी तादाद और किसी कौम की नहीं जितनी तादाद में मुसलमान मिलता है। ये दिल्ली जाने वाले लड़के, मेरे प्यारों, मैं सबको नहीं कह रहा, ये नौजवानों में आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी नौजवान हूं, मेरी तवज्जो ज्यादातर मरकूज नौजवानों के लिए होती है। ये हमारे सफेद दाढ़ी वाले जो बुजुर्ग बैठे, इन्होंने अपनी जिंदगी का 80% गुजार दिया। नौजवानों, तुम्हारा 80% अब आने वाला है। इन्होंने गुजार दिया, अब 80% तुम्हारा आने वाला है। मेरे प्यारों, अगर तुम्हें अपने अंदर सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का सदका लेना है, अगर मौला अली की शुजाअत का सदका लेना है, अल्लाह अकबर कबीरा, आज से ये अहद करना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मेरे प्यारे, ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है और तू दुनिया में हमेशा रहने वाला नहीं है। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता तेरी जिंदगी की डोर काट दे और तू इस दुनिया से चला जाए। मैं तो ये चाहता हूं और हर बंदा मोमिन चाहता है कि जब इस दुनिया से जाए तो इमाम इश्क मोहब्बत का ये शेर पढ़ता हुआ जाए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मेरे प्यारो, इस्लाम के पाबंद बन जाओ। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान तो कहता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ए लोगो, अपनी इस्लाह के लिए कुरान क्यों नहीं खोल करके देखते, उसमें गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? यकीनन ये नमाजों से बेजारी, ये दिलों पर ताला है। ये अल्लाह अकबर कबीरा, शरीयत इस्लाम से बेखौफी, ये दिलों पर ताला है। मेरे प्यारो, इस लगे हुए दिल के ताले को मुस्तफ़ा की मोहब्बत की चाबी से खोलो और अपने दिलों में इश्क़ रिसालत का जज्बा पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा, जब आपके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत रच और बस जाएगी तो फिर दुनिया की कोई सी ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर पाएगी। आप क़िबला, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमसाद साहब, कारी मोहम्मद शमसाद साहब क़िबला। ये देखें कि ना देखें, कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला देखें कि ना देखें, लेकिन मेरे प्यारो, जिसकी महफिल में तुमने हाथ उठाया है वो सब देख रहा है। तुम सैयद रेहान को धोखा दे सकते हो लेकिन अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकते, है ना? तो मैं कहता हूं मेरे प्यारो, कुरान पाक पर गौर व फिक्र करो। यहां से बात मैंने खत्म करी थी, 10 मिनट यहीं से शुरू। कुरान पाक में गौर व फिक्र करो, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले हैं? कुरान कहता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ए लोगो, कुरान में गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले हैं? वो कुरान, कारी यूसुफ साहब क़िबला, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जितनी बेवफाई उम्मत मुस्लिमा ने कुरान के साथ की है, किसी दूसरी कौम ने नहीं की।
कितने घर ऐसे हैं चिमियावली में हमने देखा तो नहीं ना सुना, लेकिन मैं जन्ने हसन रखता हूं, हुस्ने जन रखता हूं। बहुत सारे ऐसे अब से 20 साल पहले घर ऐसे होंगे, फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती है। आपने भी देखा होगा, बुजुर्ग बताएंगे, किसी के घर में किसी की बहन तिलावत कर रही है फजर की नमाज के बाद, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की माँ तिलावत कर रही है। वक्त बदला, जमाना गुजरा, आज का दौर वो है। आपने जिस घर को आज से 20 साल पहले कुरान की आवाज से मुज़य्यन देखा होगा, आज उसी घर में और घर में, उसके अलावा घरों में आज सुबह ही सुबह गाने और बाजों की आवाजें आती। मेरे प्यारो, ये कुरान के साथ बेवफाई नहीं तो क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कलाम पाक है। हाँ, हर मुसलमान के घर में कलाम पाक है, लेकिन मेरे प्यारो, ये कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं आया। ये कुरान पाक ताकों में सजाने के लिए नहीं आया, और ना जहेज से पहले 3 दिन देने के लिए आया। ये जो बेटी के जहेज देने से पहले 3 दिन पहले तुम कुरान पहुंचा देते हो ना, रस्म बना लिया है। मेरे प्यारो, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई ऐसी आम किताब नहीं है, ये वो किताब है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब की तरह, और भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखों में बातें करना बड़ा आसान होता है। दुनिया की बहुत सारी आपने किताबें पढ़ी होंगी। जब कोई ऑथर, जब कोई लेखक, जब कोई मुसन्निफ कोई किताब लिखता है, पूरी किताब लिखने के बाद आखिर में ये लिखता है कि भाई इंसान हूं, मैंने किताब लिखी है, लेकिन अगर कहीं गलती कोताही हो गई हो तो इस दिए हुए नंबर पर राब्ता कर ले, ताकि अगले एडिशन में उसकी इस्लाह हो सके। दुनिया की हर किताब पढ़ लो, मुसन्निफ अपना इज्ज जाहिर करेगा, लेखक अपना इज्ज जाहिर करेगा, लेकिन अल्लाह की वो मुकद्दस किताब जो आमना के लाल पर नाजिल हुई, जब उसे खोलोगे तुम्हारी नजर एक आयत पर पड़ेगी, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। अरे ये वो किताब है जो झूठ होना तो बहुत दूर की बात, इस किताब में शक की गुंजाइश नहीं। बेशक बेशक, सुभान। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, गैर मशकूक किताब, बेऐब किताब, ला रैब किताब। लेकिन इस किताब को पढ़ने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। अपनी ताक में सजा करके, जुज़दान में चढ़ा करके ताक में रख दिया, मादल्ला 4-4 इंची गर्द जम गई, लेकिन कोई मुसलमान पढ़ने को तैयार नहीं है। बताओ कितने लोग ऐसे, हाथ उठा के बता दो चलो, जो फजर की नमाज के बाद या दिन के किसी हिस्से में कुरान की तिलावत करते हो। 1 2 3 4 5 इतने हैं, इतने बड़े मजमे में हाथ ऐसे करके गिन सकते हैं। मेरे प्यारो, कुरान पाक क्या ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है? हाथ खड़ा करके आज ये भी वादा करो कि जो नहीं पढ़ना जानते हैं वो इमाम साहब से पढ़ना सीखेंगे, और जो पढ़े हुए हैं वो कम से कम 1 रुकू तो पढ़ लिया करो, 1 रुकू तो पढ़ लिया करो। लेकिन नहीं, चिमियावली के मुसलमान हो या हिंदुस्तान के मुसलमान हो, इन्हें सुबह ही सुबह अमर उजाला चाहिए, दैनिक जागरण चाहिए, और सुबह ही सुबह अखबार वाला नहीं आया ना तो मरखना बैल बन गए घर में। कभी बीवी को डांट रहे, कभी बेटी को, कमबख्त कहां डाल दिया, मिल नहीं रहा। तुम्हारे चस्के कैसे चस्के हैं? तुम्हें सुबह ही सुबह एक हाथ में कप चाहिए और दूसरे हाथ पे टेबल के सामने अखबार चाहिए। इसे अखबार कौन? जो सरापा झूठ है, जिसमें सब कुछ झूठ होता है सिवाय 2 बातों के, दिन और तारीख, बस यही सच है, बाकी सब झूठ। और उसको पढ़ने का इतना क्रेज कि बेटी से लड़ रहा है, बाप से लड़ रहा है, बीवी से लड़ रहा। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, वो जो बेऐब किताब, लारैब किताब, गैर मशकूक किताब, उसे पढ़ने को तैयार नहीं। मैंने चिमियावली के एक किसी मुसलमान भाई नौजवान का हाथ पकड़ा और पूछा कि भाई तू अखबार क्यों पढ़ता है? तो ये बताएगा कि हम अखबार इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चले कि कल क्या हुआ था, हमें पता चले कि संभल में क्या हुआ था, हमें पता चले कि कल मुरादाबाद में क्या हुआ था, हमें पता चले कि संसद में क्या हुआ था, लोकसभा में क्या हुआ था, हमें पता चले कि अमेरिका में क्या हुआ था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे तुम कुरान पढ़ते हो ताकि तुम्हें पता चले कि कल क्या हुआ था। अरे चिमियावली के गज्जूर मुसलमानों, कुरान पाक भी पढ़ो। अरे जब तुम इसे पढ़ोगे तो पता चलेगा कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मेरे प्यारो, कुरान के साथ वफादारी करो,
रसूलुल्लाह की शरीयत के साथ वफादारी करो, वरना याद रखो तुम अपने कमरों में बैठे रहो, लोकसभा में बिल पास हो गया, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे बहुत सारे मुसलमान 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता हो क्या रहा। अब्बा मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हैं, दादा मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हैं, हर काम रस्मन, यहां तक कि मुसलमान भी रस्मन। लेकिन हाँ, खां साहबों के नाम पर डंडा चलवा लो, कौमों के नामों पर चौधरी और फलाने और ढिमाकों के नाम पर डंडा चलवा लो। मेरे प्यारो, ये वो नाम है जो तुमने दिए हैं, और एक वो नाम है जो तुम्हारा नाम कुरान ने दिया, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम इस्लाम ने मुसलमान रखा। सुभान अल्लाह। तुम होगे चौधरी अपने घर के, होगे खां साहब अपने घर के, होगे किसी कौम के अपने घर पे, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा इस्लाम तो वो है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। बेशक बेशक। मिजाज, ये मिजाज लेके उठो और देखो कि दुनिया में क्या चल रहा है। सारी ताबूती ताकतें तुम्हारे मिटाने के लिए तैयार हैं, मिटाने के लिए तुम्हें तैयार हैं, और यकीनन ऐसी कौम को मिट जाना चाहिए। हजरत साहब, मैं तो ये कहता हूं 27 में एक बार और आ गए ना महाराज साहब, तो हर घर में वली पैदा होगा। इतना सुधार देंगे कि ये ना डॉल काटेगा किसी की, ना मेड़ काटेगा, ना किसी पे गलत मुकदमा लगाएगा, ना किसी को। ये दिल का दर्द है, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन मेरे प्यारो, जब बंदा अल्लाह के फरमान से नहीं सुधरता है तो अल्लाह ऐसे ही लोगों को बिठाल देता है तुम्हारे साथ, है ना। तो इसलिए मेरे प्यारो, अपने अंदर थोड़ा सुधार पैदा करो और अपनी जिंदगी को बामकसद बनाओ, और अपनी तालीम को आरास्ता पैरास्ता करो। दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, दोनों तालीमों से आरास्ता पैरास्ता करो, अपनी कौम मुत्तहिद कौम बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हालों पर रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।